السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم امتحان پڑھ رہے تھے جو کہ ہم نے آدھا پڑھ لیا تھا پچھلے لیکچر میں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی، توقع یعنی امید، منقطع یعنی ختم ہو گئی، کہ دوسروں سے مجھے بالکل توقع نہیں رہی، اب امید ختم ہو گئی کہ مجھے کوئی مدد ملے گی، تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھ لیں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے، میں نے دریافت کیا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے۔ وہ مسکرائے اور کہا مجھے معلوم نہیں۔ اب اس نے اتنی ہمت کی کہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ کسی سے بھی مدد نہیں مل سکتی تو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھتا ہوں۔ کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ اس سوال کا ہی جواب بتا دیں، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا کہ یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجیے، اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ اب اس کی ہمت دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ساتھ والا ہے یہ تو بڑے زور و شور سے لکھ رہا ہے، تو آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ انہی سے پوچھ رہے ہیں، مجھے یہ جو ساتھ والا لکھ رہا ہے اسی سے پوچھ رہے ہیں، اس کو زیادہ آتا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے اگر آپ کو دریافت کرنے میں یعنی پوچھنے میں لحاظ یعنی شرم آ رہی ہے تو آپ ذرا ٹہلتے ہوئے واک کرتے ہوئے یا چلتے ہوئے ادھر تشریف لے جائیں تو میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے کتب ہو گئے، یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ ہلنے والے ہی نہیں تھے، کتب ہو گئے یعنی جم گئے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ جو صاحب جو مسکرا رہے تھے یہ تو پہلے اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن اب زہر لگنے لگ گیا تھا، ان کا مسکرانا یعنی شدید برا لگنے لگ گیا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں، یعنی اللہ کی قسم سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے جو صحیح نفرت ہے یعنی دلی نفرت اگر مجھے کسی سے ہوئی ہے نا اپنی تمام عمر میں تو وہ انہی صاحب سے ہوئی ہے، کہ ان کا مسکرانا مجھے پھر زہر لگنے لگ گیا کہ میری مدد ہی نہیں کر رہے۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، کہ اسی طرح سے کرتے کرتے یہ امتحان کے دن گزر گئے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں کہ حرف بھی یاد نہ ہو پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ اب وہ کہتا ہے کہ آپ اب اس بات کا اندازہ ہے، میری حالت کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ ایسے ظالم لوگ جو کہ مدد ہی نہیں کر رہے، ایسے ظالم نگران کا یا گارڈ ایسے کہ جو ایسی حالت میں کہ آپ کو ایک حرف بھی ایک لفظ بھی یاد نہ ہو اور پورے 6 گھنٹے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے تو کتنے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف آدھا گھنٹہ ہی گزار کے کمرے سے نکل آتا، لیکن یہ مصیبت پڑ گئی مجھے کہ والد صاحب 11 بجے سے ہی نیچے آ کر صحن میں بیٹھے رہتے، کہ اگر اب میں نیچے چلا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ انہیں پتہ چل جاتا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، تبھی میں اتنی جلدی آ گیا ہوں۔ اب میں جلدی باہر آ جاتا تو جو روب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا، یعنی ختم ہو جاتا۔ کہ میں نے ایک روب جما رکھا تھا نا ان پہ کہ میں بہت پڑھتا ہوں، دن رات میں پڑھتا رہتا ہوں، میں نے بہت محنت کیا، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ آدھے گھنٹے میں ہی باہر آ گیا تو کیا محنت کی ہوگی۔ اس لیے کہرے درویش بر جانے درویش آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا، اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا۔ کہرے درویش پر جانے درویش کا مطلب ہوتا ہے کہ غریب کا غصہ اپنے آپ پر ہی نکلتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ آخری وقت تک میں امتحان کمرے میں بیٹھا رہتا اور جب نیچے اترتا تو احتیاطاً کیا کرتا تھا کہ والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا کہ پرچہ جو ہے وہ بہت مشکل آیا تھا، تاکہ اگر آگے میں فیل بھی ہو جاؤں گا تو والد صاحب کو اس بات کا ضرور پتا ہوگا کہ پرچہ ہی مشکل تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بھی میری تشفی کے لیے ممتحن کو بہت کچھ برا بھلا کہتے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ والد صاحب جو ہے اس کی تسلی کے لیے ممتحن یعنی امتحان لینے والے کو بہت برا بھلا کہتے، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ اب انہیں اس بات کا پتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا، کہ اس نے بڑی محنت کی ہے، دن رات امتحان کی تیاری کی ہے۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔ اب ممتحنوں کے پاس
कोशिश की सूझी। अब क्या हुआ कि उसकी दो उम्मीदें थी, एक तो थी इमदाद गैबी की कि इमदाद गैबी से मैं पास हो जाऊंगा, और दूसरी क्या थी, पर्चों की उलटफेर। अब वो दोनों ही नाकाम हो गई, तो क्या हुआ कि तीसरा जो है वो क्या सोचा उन्होंने कि मुम्तहिनों के पास कोशिश की सूझी कि उनसे बात की जाए कि वो नंबर लगा दें। वालिद साहब एक ज़बरदस्त चिट्ठी सिफारिश की लेकर एक साहब के यहाँ पहुंचे। ये सिफारिश करवाई, उन्होंने चाहा कि अब हम सिफारिश करा लेते हैं। वो चिट्ठी देखकर, चिट्ठी कहते हैं खत को, वो चिट्ठी देखकर बहुत इखलाक से मिले, यानी बहुत अच्छे तरीके से मिले। आने की वजह दरियाफ्त की, यानी आने की वजह पूछी। वालिद ने अर्ज किया कि खादिम ज़ादा यानी गुलाम का बेटा या खादिम का बेटा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है। अगर आप कोशिश फरमाएं तो ये खानाजात हमेशा ममनून एहसान रहेगा। खानाजात यानी कि गुलाम या खादिम हमेशा ममनून एहसान रहेगा, यानी इस एहसान का शुक्रगुजार रहेगा या ममनून रहेगा। तो वो कहता है कि वालिद उसका जाता है और फिर वो अर्ज़ करता है कि जो मेरा बेटा है खादिम ज़ादा, यानी मेरा जो बेटा है, गुलाम का बेटा कहते हैं ना इसको, तो मेरा बेटा जो है इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है, उसने इम्तिहान दिए हैं, तो आप अगर कोशिश करेंगे कि कुछ नंबर लग जाएं, कोशिश का मतलब यही है ना उसकी, तो ये जो खादिम ज़ात है यानी आपका ग़ुलाम जो है, आपका खादिम हमेशा ममनून एहसान रहेगा, एहसानमंद रहेगा आपका। वो बहुत हंसे और दूसरे लोगों से जो सलाम को हाजिर हुए थे फरमाने लगे, ये अजीब दरख्वास्त है, इनका बेटा तो इम्तिहान दे और कोशिश मैं करूं। अब वो हंसे और उन्होंने जो लोग और भी वहाँ पे सलाम के लिए हाजिर हुए थे उनको कहा, यानी कि और भी लोग जो इकट्ठे हुए हुए थे वहाँ पर, उनको कहा कि ये अजीब दरख्वास्त है कि बेटा इनका इम्तिहान में दे रहा है और कोशिश मैं करूं, यानी कोशिश भी इनके बेटे को ही करनी चाहिए ना, यानी कि पढ़ाई वो करे, वो पढ़े, तो मैं क्या कोशिश करूं। बंदा खुदा अपने लड़के से कहो कि वो खुद कोशिश करे। बेचारे बड़े मियाँ ऐसे नादिम हुए कि फिर किसी के पास ना गए, कि फिर वो बड़े मियाँ यानी कि उसका जो बाप था वो इतना शर्मिंदा हुआ कि फिर किसी के पास सिफारिश के लिए ना गया। कुछ अरसे के बाद नतीजा भी शाया हो गया और कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदरजा आला फेल हुआ। अब वो कहता है कि नतीजा जब निकला तो क्या हुआ कि कम तरीन, यानी कि वो खुद उसकी बात हो रही है कि नाचीज जुमला मज़ामीन यानी कि तमाम जुमलों में बदरजा आला फेल हुआ, आला दर्जे के साथ फेल हो गया, यानी कि जब कुछ किया ही नहीं था, इतना ही नहीं पता कि वो किस मजमून का पर्चा है, तो फिर वो क्या कर सकता था, तो फिर वो फेल ही हो सकता था और आला दर्जे के साथ फेल हो सकता था। खबर नहीं कि वो कौन से भले मानस मुम्तहिन थे कि उन्होंने 2 नंबर भी दिए। वो कहता है कि और पता नहीं अब कौन से वो भले मानस यानी कि शरीफ या नेक मुम्तहिन थे जिन्होंने 2 नंबर भी दे दिए, यानी कि उसको 2 नंबर की भी उम्मीद नहीं थी, तो बाकी ने तो 0 ही दे डाला। वालिद साहब को बहुत रंज हुआ, यानी कि बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। नंबरों की नकल हासिल की और बिलाखिर यही राय करार पाई कि किसी बदमाश चपरासी ने बदल दिए, वरना मुमकिन था कि बराबर 3 घंटे लिखा जाता और 0 मिलता। अब यहाँ पर नंबरों की नकल हासिल की, यानी कि नंबरों का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो लिया, और फिर यही वालिद साहब ने राय कायम की कि किसी बदमाश जो चपरासी है उसने बदल दिए, वरना ऐसा मुमकिन नहीं था कि बराबर 3 घंटे तक कुछ लिखा जाए और बिल्कुल ही 0 मार्क्स मिले, 0 मिले, तो किसी ने गलती से या जानबूझकर पर्चा बदल दिया। मुझे भी ताज्जुब था क्योंकि मैंने पर्चे कुछ ऐसे बुरे नहीं किए थे। अब वो कहते हैं कि मुझे भी इस बात की हैरानी थी क्योंकि मैंने पर्चे इतने बुरे भी नहीं किए थे। अब उसे इस बात की भी उम्मीद थी कि मुझे बिल्कुल 0 ही नहीं मिलना चाहिए, मैंने इतने बुरे पर्चे नहीं किए थे, हालांकि उससे कुछ आता ही नहीं था, उसने एक हर्फ भी नहीं पढ़ा था। मैंने ये जवाबात वालिद साहब को भी सुनाए, उन्होंने बहुत तारीफ की, मुम्तहिनों को बहुत बुरा भला कहा। अब क्या हुआ कि उसने जो जवाबात लिखे थे वो अपने वालिद साहब को भी सुनाया। वालिद साहब तो पढ़े लिखे थे नहीं, अब उन्होंने कहा बच्चा जो है वो फर बोल रहा है, तो जाहिरी बात है उसे आता ही है तो कुछ बोल रहा है, तो उन्होंने बहुत तारीफ की और मुम्तहिनों को बहुत बुरा भला कहा, यानी इम्तिहान लेने वालों को बहुत बुरा भला कहा।
मेरी अश्कशोई की और फरमाया, अश्कशोई करना यानी कि आंसू साफ करना, और फरमाया बेटा कोई घबराने की बात नहीं, इस साल नहीं आइंदा साल सही, आखिर कहाँ तक बेईमानी होगी। अब वालिद साहब तो बेचारे शरीफ थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, क्यों घबराते हो, इस साल नहीं हुआ, इस साल पास नहीं हुए तो आइंदा साल सही, आखिर कब तक बेईमानी होगी। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का, खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, एक साल फुर्सत तो मिल गई। कहते हैं कि जी 100 दिन चोर का तो एक दिन बादशाह का भी आता है, तो यानी कि जो भी है, लेकिन एक दिन हमारा भी वक्त आएगा, तो जो कुछ भी हुआ लेकिन मुझे एक साल का वक्त तो मिल गया, एक साल की फुर्सत मिल गई। अब आगे मश्क की तरफ चलते हैं। मुख्तसर जवाबात लिखें, इनमें ये जो सवाल है इनके जवाबात आपके नोट्स में दर्ज हैं, वहाँ से आपने इनको याद करना है। दूसरा सवाल है खुलासे का, खुलासा भी आपने अपने नोट्स में से अच्छे से याद करना है। तीसरा सवाल है हम दर्जा ज़ैल अल्फाज और तराकीब के मायने लिखें, ये आपके नोट्स में दिए हुए हैं और आपको मैंने लेक्चर के दौरान भी इन सब के मायने बताए हैं, इनको आपने याद करना है। फिर है वाहिद अल्फाज की जमा लिखें, इम्तिहान, इम्तिहानात, ख्याल, ख्यालात, मशगला, मशागिल, वकील, वकला, मुम्तहिन, मुम्तहिनीन, तदबीर, तदाबीर, मजमून, मज़ामीन। आगे चलते हैं। मतन को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। बंदे पर इम्तिहान का असर नहीं था, रत्ती बराबर। तालिब इल्म ने कितने साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया? 2 साल। लॉ कॉलेज में कौन तालिब इल्म का दोस्त था? मुंशी साहब। तालिब इल्म ने किससे पूछा कि ये पर्चा किस मजमून का है? गार्ड साहब से। तालिब इल्म कितनी देर में कमरे से बाहर निकल आता? आधा घंटा बाद। मतन को मद्देनजर रखते हुए खाली जगह पुर करें। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। वालिद साहब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक हो चला है। किसी जमाने में बड़े बड़े वकला के कान कुतरेगा। लैंप रोशन करके आराम से शाम 7 बजे से सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। किस्सा मुख्तसर दरख्वास्त शिरकत दी गई और मंजूर हो गई। यहाँ एक बहुत खलीक और हंसमुख निगरान कार थे। एक मुकन्निन एक असूल कायम करता है, दूसरा उसको तोड़ देता है। वालिद साहब रोज 11 बजे से आ जाते और सेहन में बैठे रहते और नीचे सेहन में बैठे रहते। वालिद ने अर्ज किया कि इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है कौन? खादिमजादा। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। आगे है मतन को मद्देनजर रखकर कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। फरतुल्लाह बेग, इम्तिहान, फेल, पास, जीना, मरना, 2 साल, लॉ क्लास, बूढ़ा, बुढ़िया, तकदीर, तदबीर, मुश्किल, आसान, कामयाबी, नाकामयाबी, दरख्वास्त, मंजूर। जुमले की अज्जाए तरकीबी। जुमला अल्फाज के ऐसे मजमूए का नाम है जिससे बात पूरे तौर पर समझ आ जाए। हर जुमले के 2 हिस्से होते हैं जिनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को कवायद में असनाद कहते हैं। जिस शख्स या चीज़ की निस्बत या ताल्लुक हो इसे मसनद, और जिसके साथ ताल्लुक या निस्बत हो इसे मसनद अलैह कहते हैं। मसनद अलैह हमेशा इस्म यानी नाम होता है। मसनद कभी इस्म और कभी फेल होता है। अब वो कहते हैं कि जुमला जो होता है वो अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ होता है जिससे आपको बात पूरे तरीके से समझ आ जाती है। मुख्तलिफ अल्फाज को जब मिला देते हैं और एक सही बामानी जुमला बना देते हैं तो उसे हम जुमला कहते हैं।
کہ हर जुमले के दो हिस्से होते हैं, कि वो कहते हैं कि दो हिस्से होते हैं जुमले के और उनका आपस में दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक होता है और उस ताल्लुक को हम क्या कहते हैं, असनाद कहते हैं कवायद में। और जिस चीज़ से या जिस चीज़ की निस्बत या ताल्लुक हो, निस्बत भी ताल्लुक को ही कहते हैं। तो जिस शख्स या चीज़ की निस्बत या ताल्लुक हो उसको क्या कहते हैं हम, मसनद। और जिस चीज़ से उस ताल्लुक को जोड़ा जा रहा है उसे हम मसनद अलैह कहते हैं। अब मसनद अलैह क्या है, नाम होता है और मसनद कहते हैं कि कभी इसम हो जाता है कभी फेल हो जाता है। अब हम इसकी मिसालें देखेंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा। अनवर दौड़ा, अब अनवर क्या है, मसनद। अब यहाँ पे हमने देखा था मसनद अलैह इसम यानी नाम होता है, ठीक है। तो अनवर क्या होगा, मसनद अलैह। दौड़ा क्या है, दौड़ा है मसनद यानी वो इसम भी हो जाता है फेल भी हो जाता है। फरीद अक्लमंद है, अब अक्लमंद क्या है यहाँ पर, मसनद। और फरीद क्या है, मसनद अलैह यानी नाम है ना फरीद। अब दौड़ा जो है वो आपको पता चल रहा है ये फेल है यानी कि काम किया जा रहा है। अब अक्लमंद ये सिफ्त बताई जा रही है और सिफ्त इसम की इकसाम है, किस्म है सॉरी। तो इसम सिफ्त से इसका ताल्लुक है अक्लमंद का, इसलिए ये इसम में आएगा ये फेल में आएगा। पहले जुमले में मसनद अलैह अनवर यानी इसम है, अनवर इसम है, जबकि मसनद दौड़ा, मसनद क्या है, दौड़ा, वो फेल है, ठीक है। दूसरे जुमले में मसनद अलैह फरीद है, फरीद यानी नाम, मसनद अलैह इसम है और मसनद अक्लमंद भी इसम है, अक्लमंद इसम सिफ्त है, ठीक है, वो भी इसम है। जुमला इस्मिया और फेलिया में इम्तियाज करना यानी फर्क कैसे किया जा सकता है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में। जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जिसमें मसनद और मसनद अलैह दोनों इसम हो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हमने देखा अक्लमंद इसम सिफ्त है ना, ये भी इसम हो गया, फरीद भी इसम हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जुमला इस्मिया। और अनवर दौड़ा, अब अनवर दौड़ा क्या है, अनवर दौड़ा, अनवर क्या है, इसम है, दौड़ा क्या है, फेल है, इसलिए ये जुमला फेलिया में जाएगा। अब आगे चलते हैं। अकबर बहादुर है, जैद बुज़दिल था, लड़के चालाक हैं। इन तीन जुमलों में मसनद अलैह अकबर, जैद और लड़के इसम है क्योंकि ये नाम है इसे ये मसनद अलैह है। इसी तरह मसनद बहादुर, बुज़दिल, चालाक भी इसम है। बहादुर, बुज़दिल, चालाक जो है वो इसम की किस्म सिफ्त से ताल्लुक़ है इनका, इसलिए ये भी इसम है। इसमिया जुमले के मुदज्जा ज़ैल तीन अज्जा होते हैं, कौन से, मसनद अलैह, मसनद और फेल नाकिस, फेल नाकिस, ठीक है। मसनद अलैह इसे मुब्तदा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, मुब्तदा। ऊपर की मिसालों में अकबर, जैद और लड़के मुस्नद अलैह हैं। मुस्नद अलैह कौन से हैं, अकबर, जैद और लड़के जो ऊपर की मिसालें दी गई हैं, ये नाम, ये क्या है, मुस्नद अलैह और मुब्तदा भी हैं। अब मसनद क्या है, इसे ख़बर भी कहते हैं। ऊपर की मिसालों में बहादुर, बुज़दिल और चालाक क्या है, मसनद है। अब ये बुज़दिल, चालाक ये क्या है, मसनद है, लेकिन ये ख़बर भी दी जा रही है कि ज़ैद बुज़दिल था, लड़के चालाक हैं, तो ये ख़बर भी दी जा रही है, इसलिए हम इसका दूसरा नाम क्या है, ख़बर। आगे चलते हैं। फ़ेल नाकिस, फ़ेल नाकिस से ज़माने का तयन होता है, यानी कि आप ज़माने का अंदाज़ा लगाते हैं इससे कि ज़माना जो है वो गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही है, अब के ज़माने की बात हो रही है या आने वाले ज़माने की बात हो रही है। ऊपर की मिसालों में है, था और हैं फ़ेल नाकिस हैं। अब ज़ैद बुज़दिल था, यानी पहले वो बुज़दिल था, अब वो बुज़दिल नहीं है, ये पिछले ज़माने की बात हो रही है। इसका आपको किससे पता चला, फ़ेल नाकिस था से। इसी तरह लड़के चालाक हैं, अभी भी वो चालाक हैं, ठीक है, ये जो ज़माना गुज़र रहा है इसमें से उनका ताल्लुक़ है, तो इसलिए ये भी फ़ेल नाकिस है। जुमला फ़ेलिया ऐसा जुमला जिसमें मसनद अलैह इस्म और मसनद फ़ेल हो, जैसे वो पढ़ता था, आयशा रोती है, मैं खाना खाता हूँ। इन तीन जुमलों में मसनद अलैह वो, आयशा और मैं इसम है। अब ये क्या है, मसनद अलैह या मुब्तदा क्या है, वो, आयशा और मैं, ठीक है। जबकि मसनद पढ़ता, रोती और खाता अफ़ाल यानी फ़ेल की जमा अफ़ाल हैं।
اب یہ چونکہ نام سے تعلق ہے ان کا تو کسی شخصیت سے تعلق ہے، اس لیے یہ کیا ہے، مسند علیہ ہے اور اسم ہے وہ عائشہ اور میں۔ اب پڑھتا، روتی، کھاتا کیا ہے کہ فعل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی کام کیا جا رہا ہے، یہ فعل ہے۔ جملہ فعلیہ جملے کے اجزاء درج ذیل ہیں۔ اب اس کے اجزاء کیا ہے؟ مسند علیہ، اسے فاعل کہتے ہیں یعنی کام کرنے والا۔ اوپر کی مثالوں میں وہ، عائشہ اور میں کیا ہے؟ مسند علیہ ہیں۔ وہ، عائشہ اور میں اسم بھی ہوتے ہیں۔ اب جملہ فعلیہ میں فاعل کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یعنی کام کرنے والا۔ مسند فعلیہ جملے میں اسے فعل کہتے ہیں۔ اب مسند کیا ہے؟ پڑھتا، روتی، کھاتا، ٹھیک ہے، یہ مسند ہے، جیسے اوپر بھی بزدل اور چراغ مسند تھا، لیکن جملہ فعلیہ میں ہم اس کو فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو جو اسم ہوتے ہیں یا مسند علیہ ہوتے ہیں انہیں ہم فاعل کہتے ہیں، اور پڑھتا، روتی اور کھاتا جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ مفعول، جس پر کام کیا جائے وہ مفعول کہلاتا ہے، جیسے وہ ہاکی کھیلتا ہے، میں ہاکی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہاکی کھیلتا ہے میں ہاکی، ہاکی پر کام کیا جا رہا ہے، اس لیے ہاکی کیا ہے؟ مفعول ہے جس پر کام کیا جائے۔ مبتدا اور خبر کا فرق اور آگاہی۔ اسمیہ جملے کے مسند علیہ کو مبتدا کہتے ہیں جبکہ مسند کو خبر۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اسمیہ جملے میں جو مسند علیہ ہوتا ہے نا، اسمیہ جملے کا جو مسند علیہ ہوتا ہے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں جبکہ مسند کو ہم خبر کہتے ہیں۔ عادل ذہین تھا، اسلم نالائق ہے، پتھر سخت ہے، لکڑی مضبوط ہے۔ ان مثالوں میں عادل، اسلم، پتھر اور لکڑی کیا ہیں؟ مبتدا۔ اسم ہے نا، عادل، اسلم، پتھر اور لکڑی مبتدا ہے، ٹھیک ہے، یہ فعلیہ کی بات ہو رہی ہے، اسمیہ میں ہم اس کو مسند علیہ کہتے ہیں۔ ذہین، نالائق، سخت اور مضبوط، جبکہ ذہین، نالائق، سخت اور مضبوط مسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا، لیکن ہم اس کو اس میں کیا کہیں گے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو مشق ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے، خلاصے، سوال جواب اور جو بھی چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کہانی یاد کرنی ہے، جھوٹ کی سزا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔